हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन स्टडीज़। ਅੱਜ ਹੈ 13th ऑफ जुलाई 2021 ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ 7 o'clock ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 10 ਤੋਂ 15 ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਮਾइंड हो के ਇਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ और जिन्ना रेगुलर पढ़ोगे, देखो करंट अफेयर पढ़ना अलग चीज़ है पर करंट अफेयर ਨੂੰ डेली पढ़ना अलग चीज़ है। अगर ਤੁਸੀਂ डेली पढ़ोगे ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਕੱਠੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਇਕੱਠੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। डेली ਦੀ ਕਲਾਸ डेली ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। Who has been appointed as MD and CEO of Federal Bank? ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ MD ਅਤੇ CEO ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਮਾਈਕਲ ਡੀ ਪਾਤਰਾ, ਟੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਐਂਡ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਣ ਨੇ? RBI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ MD ਐਂਡ CEO ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਰਹੂਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 1200 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਓਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ MD ਐਂਡ CEO ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਓਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਰਡ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 12th of ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਰਮਨ ਸਮਿਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਓਕੇ। ਔਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਗੋਵਿੰਦ ਚਿੰਟਾਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਬਾਰਡ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ RBI ਦੀ। RBI ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਯੰਗ ਹਿਲਟਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਇਹਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ 25ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ RBI ਦੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਫੋਰਮਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਮਿਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਰਸਿਮਹਨ ਕਮੇਟੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਐਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਸੀ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼, ਉਹ ਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੋ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? KP ਹੌਰਮਿਸ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਚੀ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ MD ਐਂਡ CEO ਕੌਣ ਬਣ ਗਏ ਹੈ? ਸ਼ਾਮ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ICICI ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਰਚੈਂਟ ਸਟੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਟੇਲ ਵਾਲੇ ਮਰਚੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਸਟੈਕ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਐਪ ਹੈ ਇਹ ICICI ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ LIC ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟੌਪ 10 ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੋਸਟ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੌਪ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ LIC ਰਹੀ ਹੈ।
और IDBI बैंक नू डिसइन्वेस्टमेंट कर दिता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी इनके शेयर वेचे गए हैं प्राइवेटली। ऑलराइट। और हाल ही दे विच RBI की जो मीटिंग हुई उहदे विच रैपो रेट, रिवर्स रैपो रेट एंड बैंक रेट इन्हां दे विच कोई भी चेंज नहीं किया गया। जो रैपो रेट है वो 4% रखी गई है, रिवर्स रैपो रेट 3.35% है और बैंक रेट जो है ये एट प्रेजेंट भी 4.25% के ऊपर ही टिकिया हुआ है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, एक्ट्रेस करीना कपूर हैज़ लॉन्च्ड विच बुक रीसेंटली। जो एक्ट्रेस है करीना कपूर, इन्हों ने हाल ही दे विच केड़ी किताब है जिसनों लॉन्च किया? आंसर इज प्रेगनेंसी बाइबल। ओके। ए वाली बुक का विमोचन हाल ही दे विच किया गया और ये इन्हों ने ना जदों इन्हों के पहले बेटे का जन्म होया सी तैमूर का, उस टाइम इन्हों ने प्रेगनेंसी टाइम लिखनी शुरू की सी और इनू लॉन्च किया गया हुण। और ये विच ना इन्हों ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान शारीरिक और भावनात्मक यानी इमोशनल एंड फिजिकल जिन्ने भी उन्होंने अनुभव किए हैं उन्होंने दे बारे दे विच इस पूरी बुक दे विच डिटेल दे विच उन्होंने गल की है। ओके। हुण आपां इत्थे गल कर लैंदे आ कुछ ऐदां दे एक्ट्रेस या एक्ट्रेसिस बॉलीवुड दे विच जिहड़े हैगे आ और जिन्हां ने अलग अलग बुक्स लिखियां और इंपॉर्टेंट भी ने। ठीक है। तो जो ट्विंकल खन्ना है इन्हां दी बुक है पायजामाज आर फॉरगिविंग। ओके। जिहड़े आ जाणगे शिल्पा शेट्टी, इन्हों ने लिखी द डायरी ऑफ अ डोमैस्टिक डीवा एंड प्रियंका चोपड़ा की आप अज गल भी की सीगी, इन्होंने बुक लिखी अनफिनिश्ड। ठीक है। और ये बुक किस लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना जदों इनू लॉन्च किया गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये USA की सब तो ज़्यादा सेल होने वाली बुक बन गई सी। ओके। और अगर आप नीना गुप्ता की गल करते हैं तो इन्हों की बुक है साच कहूँ तो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ दे विच रही है, ये इन्होंने लिखी। उस तो बाद शाहीन भट्ट की बुक होएगी नेवर बीन अनहैप्पियर। ओके। तो ये तुसी सारियां ही बुक्स माइंड विच रख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, GI सर्टिफाइड फाजिल मैंगो बिलोंग्स टू विच स्टेट। भूगोलिक संकेत प्राप्त फाजिल अंब किस राज्य के नाल संबंध रखता है? द आंसर इज वेस्ट बंगाल। ठीक है। पश्चिमी बंगाल का यह अंब है जिसनों की GI टैग मिल चुका है। और ये न्यूज़ विच क्यों आया क्योंकि हाल ही दे विच इनकी जिहड़ी पहली खेप है इनू किहड़ी कंट्री दे विच निर्यात किया गया तो इनू बहरेन दे विच निर्यात किया गया। ओके। ये तुसी याद रखना, इन्हों पहली बारी भेजा गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये वेस्ट बंगाल की किहड़ी ऐदां दी जगह है जिथे बहुत ज़्यादा फेमस है तो मालदा नाम का जिला है जिथे दी खासियत है। ओके। देखो GI टैग हुंदा की है यानी कि भूगोलिक संकेत की हुंदा है, ये ना किसी भी विशेष खेतर दे खेती कुदरती या फिर किसी भी उद्योगिक उत्पाद नूं दिता जाता है, प्रोडक्ट नूं दिता जाता है। और इहदे नाल की हुंदा है इहदी गुणवत्ता और इहदी जिहड़ी विशिष्टता हैगी है इहदा प्रतीक मन्निया जाता है इनू। और जदों किसी भी उत्पाद नूं ना भूगोलिक संकेत मिल जाता है यानी GI टैग मिल जाता है उस तो बाद उनकी मार्केट दे विच वैल्यू जिहड़ी हैगी है वो वध जाती है और डिमांड हो जाती है फॉरेन कंट्रीज़ दे विच भी। ठीक है। इस करके समय समय के उपर जो अलग अलग सरकार हैं वो GI टैग की मंग करदियां रहिंदियां। ओके। हुण अगर आप गल करते हैं 2021 की ही गल हैगी है, जून दे विच ना बहरीन दे विच एक पूरा हफ्ता मनाया गया सी अंब दा। ठीक है। अंब के संदर्भ का और इत्थे पूरा कार्यक्रम करवाया गया जिस दे विच ना अंब दीयां किन्नियां प्रजातियां दिखाईयां गईयां तो 16 किस्मां की प्रदर्शनी लगाई गई सी। इहदे विच 3 ऐदां दीयां किस्मां सी जिन्हां नूं कि इंडिया दे विच GI टैग मिल चुकिया है। ठीक है। तो ये किहड़ियां सीगियां? इत्थे वेस्ट बंगाल का हो जाएगा लक्ष्मण भोग और वेस्ट बंगाल का ही खिरसापतिन और बिहार का जरदालू आम। ठीक है। ये तीनों ही GI टैग प्राप्त जिहड़ियां उत्थे अंब दीयां किस्मां उन्हां नूं दिखाया गया सी। ठीक है। हुण इत्थे गल हो रही है बहरेन दी, तो इहदी कैपिटल हो जाएगी मनामा, प्राइम मिनिस्टर रहणगे सलमान बिन हामद अल खलीफा। और अगर आप करंसी की गल करते हैं तो इत्थे दी करंसी रहेगी दिनार। ठीक है। अगर आप करंट दे नाल रिलेट करिए तो पूरी दुनिया का सब तो लंबा टाइम तक एज अ प्राइम मिनिस्टर रहने वाले परसन जिन्हां दा नाम है खलीफा बिन सलमान अली खलीफा, ये हाल ही दे विच इन्हां दी डेथ हो गई। ये बहरीन दे ही प्राइम मिनिस्टर सीगे। ठीक है। और इन्हां ने ना बहरीन की जो प्राइम मिनिस्ट्री हैगी है वो 1970 दे विच संभाली सी। ओके। काफ़ी लंबा टाइम एज अ प्राइम मिनिस्टर इन्हां ने काम किया।
और इस दे नाल इत्थे हैगा एक किंग फाहद कॉजवे। ये ना ब्रिजिज की एक सीरीज़ है, यानी काफ़ी सारे ब्रिज ने जिहड़े कि कनैक्ट करते हैं सऊदी अरेबिया नूं बहरेन दे नाल। ओके, और बहरेन दे विच ना एक रुख है जिंदी उम्र हैगी है 400 साल, और इस रुख नूं बोलिया जाता है ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, ये भी तुसी याद रख लेना। और नीचे तुसी देख पा रहे होवोगे तुहानूं बहरेन की लोकेशन मिल रही है, ये है बहरेन। और बहरेन केड़ी गल्फ दे विच हैगा, केड़ी खाड़ी दे विच है, तो ये पर्शियन गल्फ दे विच इहदी लोकेशन मिलेगी आपां नूं। ओके, नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट। किस संस्था ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज नाम की एक रिपोर्ट नूं जारी किया है? द आंसर इज ऑक्सफैम। ठीक है, जी ऑक्सफैम है ना, ये एंटी पॉवर्टी ऑर्गेनाइजेशन हैगी है। तुहानूं जान के ना बहुत हैरानी होने वाली है कि ये जो रिपोर्ट है ये इन्होंने की बोलिया है कि 1 मिनट के अंदर अंदर ना, हाँ जी तुसी सही सुन रहे हो, 1 मिनट के अंदर अंदर पूरी दुनिया दे विच 11 लोग सिर्फ भुख दे नाल मर जाते हैं। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये वाला जो आंकड़ा है ना, ये कोविड नाल मरन वाले लोगों तो भी ज़्यादा है। इन्हां दे अनुसार कोविड दे नाल 1 मिनट दे विच 7 लोग मरदे है, तो जे आपां भुखमरी की गल करिए तो 1 मिनट दे विच 11 लोगों की जान इहदे नाल चली जाती है। ठीक है, तो हुण तुसीं खुद सोच के देख लो ज़्यादा खतरनाक की है, कोविड या फिर भुख। तो इलाज किहदा होना चाहिए, कोविड का पहला इलाज होना चाहिए या कि भुख का पहला इलाज होना चाहिए, है ना। और ऐसे भुखमरी दे करके इन्होंने की बोलिया कि हर जगह के उपर ना काल की स्थिति आई हुई है, और पिछले साल नालों 6 गुना ज़्यादा भुख दे नाल मौतां दे विच वाधा होया है। ठीक है, और सब तो ज़्यादा बुरी हालत किहड़ियां कंट्रीज़ दी है? अफगानिस्तान, इथोपिया, साउथ सुडान, सीरिया एंड यमन। ये ऐदां दे देश ने जिथे कि सब तो ज़्यादा लोग भुख दे नाल मरदे ने। ओके, देखो कुछ समा पहला तुहानूं याद होएगा एक रिपोर्ट आई सी किहड़े वाली, फूड वेस्ट इंडेक्स 2021। ठीक है, इनू किन्ने लॉन्च किया सी? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP ने WRAP दे नाल मिल के फूड वेस्ट इंडेक्स नू जारी किया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ कि इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ना हर एक इंसान घट्टो घट्ट 1 साल के अंदर 50 किलो तक खाना वेस्ट कर दिंदा है। वेस्ट का मतलब जिवें आपां होटल दे विच या रेस्टोरेंट विच जाने आ, या फिर कई बारी आपां रात नूं खाना खांदे होए अपनी थाली दे विच ही खाना छोड़ दिंदे आ। इन्ना ज़्यादा आपां वेस्टेज करदे आ, एक इंसान 1 साल दे विच 50 किलो। ओके, और ये उही वाला खाना है जिंदी एक बाइट लैन दे लई ना लोग तरसते हैं, और ऐसे ही तरस दे नाल 1 मिनट दे विच 11 लोग दी मौत भी हो जाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स कोशिश करया करो कि खाना अपना जो है उन्ना ही लो जिन्ना तुसी खा सकते हो। ओके, इस दे नाल आपां देख रहे हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया 2020 का, इस दे विच इंडिया का रैंक बहुत ही माड़ा रहा है। आपां 107 कंट्रीज़ दे विचों 94 नंबर के उपर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इत्थे भी भुखे रहन वाले, भुखे सोन वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हैगी है। और चाइना ने ऐसे फूड की वेस्टेज नूं खत्म करने के लिए एक क्लीन प्लेट कैंपेन नूं स्टार्ट किया, और इनू ही ऑपरेशन एम्पटी प्लेट भी बोलिया जाता है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ने की बोलिया कि ਤੁਹਾਨੂੰ सज़ा मिलेगी अगर ਤੁਸੀਂ थाली ਦੇ ਵਿੱਚ खाना किसी रेस्टोरेंट ਵਿੱਚ जाके बचा ਦਿੰਦੇ हो। ओके, और इस दे नाल तुसी याद रख लेना कि जो यूनाइटेड नेशन है ना, तुहानू पता होएगा इन्होंने SDG दिते हुए हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। ये किन्ने हैगे टोटल 17, और इहदे विच UN ने की बोलिया कि 2030 तक सारिया ही कंट्रीज़ इन्हां नू पूरा कर लैणगियां, राइट। और ऐसे ही SDG का जिहड़ा गोल नंबर 2 है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना भुखमरी की भी गल की गई है कि 2030 तक जीरो हंगर कर देना है, यानी कि भुखे सोन वाले लोगों की संख्या जीरो कर देनी है 2030 तक पूरी दुनिया विच। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉन विमेंस विंबलडन सिंगल टाइटल। महिला एकल विंबलडन का खिताब किसने जीत्या? तो आंसर रहेगा एशलेग बैटे। ओके, तो इन्हों ने ना तुसी देखो ऐदा दे आस्ट्रेलिया दे विमेन बने ने पहले जिन्हों ने 1980 तो बाद पहली बारी विंबलडन का जो खिताब है वो अपने नाम किया आ। ठीक है, सिंगल वाला। और इन्होंने हराया किनू? तो इन्होंने हराया कैरोलिना नू। ठीक है, और ये जैक रिपब्लिक तो बिलोंग करते हैं कैरोलिना, और ये दोनों ही खिडारी कैरोलिना एंड एशलेग बैटे
ये दोनों ही पहली बारी विंबलडन सिंगल के फाइनल दे विच पहुंचे सीगे और बैटी ने पहली बारी विंबलडन नूं जित्तिया भी है। ठीक है, तो कि ये इन्हां दा पहला ही खिताब है जो इन्हां ने ए वाले टाइटल दे विच लिया, जिहड़े 4 टाइटल हुंदे आ साल दे विच, नहीं, इन्हां ने दूसरा टाइटल जित्तिया है। पहली बारी इन्हां ने 2019 दे विच फ्रेंच ओपन नूं भी जित्तिया सी। ठीक है, उस तो बाद दूसरी बारी हुण इन्हां ने विंबलडन जित लिया 2021 दे विच। हुण देखो, अगर आपां टैनिस दे ग्रैंड स्लैम्स की गल करते हैं तो टोटल 4 ग्रैंड स्लैम हुंदे आ जो कि 1 साल दे विच करवाए जाते हैं। सब तो पहला जनवरी दे विच हुंदा है किहड़े वाला, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ओके, उस तो बाद मई जून दे विच हो जाता है किहड़ा, फ्रेंच ओपन। आफ्टर दैट जून जुलाई दे विच करवाया जाता है विंबलडन ओपन और सब तो लास्ट ते अगस्त एंड सैप्टेंबर दे विच हुंदा है यूएस ओपन। ओके, अगर आपां गल करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन, ये दोनों ही ना हार्ड कोर्ट के उपर खेडे जाते हैं और जिहड़ा फ्रेंच ओपन है इनू क्ले यानी कि मिट्टी के मैदान में खेलते हैं और जिहड़ा हुंदा है विंबलडन इनू ग्रास यानी कि घाह के मैदान दे विच खेलिया जाता है। और इत्थे तुसी एक चीज़ होर याद रखोगे, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्हां चारां दे विचों सब तो पुराना ग्रैंड स्लैम किहड़ा हैगा, तां ये हो जाएगा विंबलडन ही। ठीक है, और विंबलडन नूं कदों स्टार्ट किया गया सी, 1877 दे विच। हुण आपां देख लैंदे आ करंट दे नाल रिलेट करके कि जिहड़ा ऑस्ट्रेलियन ओपन होया 2021 दा, इहदे विच विमेन दा खिताब जित्तिया नाओमी ओसाका ने और मैन दे विच जित्तिया नोवैक जोकोविक। देखो तुहानूं ना जो नोवैक जोकोविक जिहड़े हैगे है इन्हां ने सारे दे सारे ही खिताब जित्ते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन सॉरी। तो फिर तुसी मैन नूं याद करना तुहाडे लई बहुत ईजी होएगा, सारे दे सारे ही नोवैक ने जित्ते है। इस तो बाद आपां गल करते हैं फ्रेंच ओपन विमेन दी, ये जित्तिया बारबोरा ने। ठीक है, उस तो बाद अगर आपां गल करते हैं विंबलडन दी तो आपां हुणे ही देखिया कि ये जित लिया है एशलेग बैटी ने, राइट। तो ये तुसी देख सकते हो इधर ये है नोवैक एंड ये हो जाएंगे एशलेग बैटी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, KVIC रिसेंटली सिक्योर्ड ट्रेडमार्क इन विच कंट्री। खादी ने हाल ही दे विच किस देश दे विच ट्रेडमार्क प्राप्त किया है, तो आंसर हो जाएगा भूटान। ओके, देखो भूटान दे विच खादी ने हाल ही दे विच अपना ट्रेडमार्क बना लिया हुआ है। इस तो पहला भी खादी ने काफ़ी कंट्रीज़ है जिन्हां दे विच अपना ट्रेडमार्क प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, तो खादी यानी कि KVIC दी फुल फॉर्म की होएगी, द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और इन्हें 3 नवीं कंट्रीज़ दे विच हाल ही दे विच अपना ट्रेडमार्क बनाया है। ओके, अगर आप गल करते हैं कि UAE दे विच इन्हां ने 28 जून 2021 नूं ट्रेडमार्क हासिल किया और मैक्सीको दे विच दिसंबर 2020 दे विच। ठीक है, और हुणे हुणे ही भूटान दे विच भी इन्हां ने अपना ट्रेडमार्क हासिल कर लिया होया है। और नाल ही इन्हां ने एक बोल्ड नाम का कैंपेन यानी कि बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, इस नाम का कैंपेन भी इन्होंने स्टार्ट किया सीगा और इसके अधीन इन्होंने 5000 बैम्बू के पौधे लगाए सी, किहड़ी जगह ते, राजस्थान दे विच। ठीक है, और बैम्बू नूं किहड़ी प्रजाति विच रखिया जांदा है, घाह दी, ट्री दी नहीं। ओके, और इस दे नाल नाल इन्होंने एक रीहैब नाम का प्रोजैक्ट भी स्टार्ट किया। इनकी शुरुआत की गई ताकि जिहड़े हाथी है और इंसान है इन्हां दे विचकार दा जो कॉन्फ्लिक्ट है उन्होंने खत्म किया जा सके, वो भी किद्दां, दोनों नूं ही नुकसान पहुँचाए बिना। इस प्रोजैक्ट दे विच इन्हां ने की किया, बीज यानी कि जिहड़ियां मक्खियां है उन्होंने यूज़ किया जाता है वाड़ दे वजों, वाड़ किद्दां मतलब फेंसिंग वजों। ठीक है, और इहदे विच ना जिहड़े हाथी हुंदे आ फिर वो मक्खियां दे करके ना जिहड़े आवास हुंदे आ इंसानां दे उन्हां विच घुस नहीं पांदे और उन्हां नूं इस चीज़ का भी डर हुंदा है, एक तां इरीटेट तां हुंदे ही है, उन्हां दे नाल उन्हां नूं लगदा है कि इन्हां दे सुंड दे विच जाके इन्हां नूं कट सकदियां, राइट। तो इस तरह फिर ये जिहड़े ह्यूमन हैबिलिटेशन है वो वाले एरिया दे विच एंटर नहीं करते। ओके, हुण इत्थे गल हो रही सी भूटान दी, तो आपां देखांगे इहदी कैपिटल रहेगी थिंपू, प्राइम मिनिस्टर हो जाणगे लोटे शेरिंग एंड करंसी हैगी है गुलट्रम। ओके, और इन्हां ने ना चाइना दे नाल एक कॉन्फ्लिक्ट है भूटान का। चाइना ने हाल ही दे विच की बोलिया कि भूटान दे विच ना एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है सैकटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनके उपर अपना हक जमा दिता है, यानी चाइना बोल रहा है कि मेरी टैरेटरी है, जिदा कि वो हर एक देश के नाल करदा ही है। ओके,
और इंडिया ने भूटान दे नाल एक मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक एग्रीमेंट साइन किया आ इन्वायरमेंट के खेत्र दे विच, ठीक है। इस दे विच की होएगा, ये दोनों ही देश मिल के क्लाइमेट चेंज की समस्या बारे विच और वेस्ट मैनेजमेंट नूं लैके काम करनगे। और ये जिहड़ा एग्रीमेंट है 18 जून 2021 नूं ही साइन किया गया सी। अगर आप खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ की गल करते हैं तो इनू फाउंड किया गया 1956 दे विच। हैडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई दे विच एंड इनके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट फॉर ट्राइबल्स। हाल ही विच किस राज सरकार ने जनजातियां दे हितां दे लई अलग तो विभाग खोलन का ऐलान किया है? आंसर रहेगा असम। देखो, अरुणाचल प्रदेश वैसी पहली इदां दी स्टेट बनी सी नॉर्थ ईस्ट दे विच जिसने कि भारतीय संस्कृति नूं बचाउण दे लई और ये जिहड़े ट्राइबल एरियाज हैगे आ इन्हां जनजातियां दे लई एक अलग तो डिपार्टमेंट बनाया सी। हुण असम ने भी फैसला किया है कि ये भी एक आज़ाद डिपार्टमेंट बनाएंगे ताकि जिहड़ी भारत की संस्कृति है और जिहड़ी ट्राइबल लोगों की संस्कृति है इन्हां दे जिहड़ा कल्चर है उन्होंने प्रमोट किया जा सके और नाल ही प्रिजर्व भी किया जा सके, ठीक है। अगर आप गल करिए असम की तो इनकी कैपिटल हो जाएगी दिसपुर, गवर्नर रहेंगे जगदीश मुखी और सीएम हो जाएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। ओके, करंट नाल रिलेट करते हैं तो नाबार्ड ने 1236 करोड़ का एक लोन दिता असम नूं ताकि ये अपना जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी पिंड का जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनू डेवलप कर सकन। और इत्थे ही असम दे विच 18 एशियान हाथी जिहड़े हैगे आ बिजली गिरन करके मर गए सी। किहड़ी डिस्ट्रिक्ट दे विच? नागांव डिस्ट्रिक्ट। ओके, और इत्थे ना एक पटोला नाच हुंदा है, इनदी आर्ट फॉर्म है, कित्थे दी? असम दी। ये पूछा जा सकता है, याद रखना। इन्हां ने ना हाल ही दे विच 2 वीडियोज़ लॉन्च कीतियां, नाम रखिया कोविड शत्रु एंड कोविड विभारत, ठीक है। इन्हां वीडियोज़ दे विच ना इन्हां ने की कीता, मैसेज देने की कोशिश की है जनता नूं कि ये कोविड दे नाल रिलेटिड अवेयरनैस नूं फैलाया जा सके। और ये जिहड़ियां वीडियोज़ है इन्हां ने यूनीसैफ दे नाल मिल के बनाई हैं। ओके, और इत्थे दा एक बर्ड है जिहदा नाम है बुहाग बिहू। इनकी पहली बारी बर्ड काउंट ऑफ इंडिया वालों गिनती स्टार्ट की गई है। और असम दे रैड राइस नूं एक्सपोर्ट किया गया यूएस दे विच। इत्थे 118 साल बाद मैंड्रेन नाम की जो डक है उन्होंने देखा गया। और इत्थे ही एक स्कीम शुरू हुई सी अरुणोदय स्कीम जिन्हों की विमेन की एम्पावरमेंट के लिए शुरू किया गया। इहदे अधीन ना कुछ इदां दा अमाउंट है 830 रुपए का जिहड़ा कि इहो जिहियां औरतां नूं मतलब डायरैक्ट बैंक दे विच ट्रांसफर किया जाएगा जो कि अपनी फैमिली दियां हैड ने, ठीक है। और ऐसे असम ने ही बेस्ट स्टेट अवार्ड लिया सी फिशरीज़ दे विच। इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम दे विच ही बनया। और इत्थे 6वां नैशनल पार्क बनया किहड़े वाला? रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट। और इन्हें हाल ही दे विच अपना 7वां नैशनल पार्क भी घोषित किया दहिंग पिटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नूं, ठीक है। और इत्थे ही ना अपनी इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर क्रॉसिंग रोपवे कित्थे बनाया गया? गुवाहाटी दे विच। और ये ब्रह्मपुत्रा नदी के उपर बनाया गया आ। और इत्थे ही अपने इंडिया का इको एक गोल्डन यानी कि सुनहरी बाग टाइगर मिलिया कित्थे? इत्थे दे काजीरंगा नैशनल पार्क दे विच, जिथे दे कि वन होर्नड जिहड़े राइनो है बहुत ज़्यादा फेमस ने और सब तो ज़्यादा इत्थे ही मिलते हैं, ठीक है। दैन क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय ट्विटर इंडिया एज रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। ट्विटर ने भारत विच किसनू निवासी शिकायत अधिकारी वजों नियुक्त किया है? आंसर रहेगा विनय प्रकाश। ओके, अगर आप गल करते हैं बाकी ऑप्शंस की तो जो सपूर्थी प्रिय है इन्हों फेसबुक ने अपना ग्रीवेंस ऑफिसर बनाया, प्रकाश बी लाल नू व्हाट्सएप ने बनाया है। ओके, तो ट्विटर ने हुण विनय प्रकाश नू बना दिता है। कुछ दिन पहला ही ट्विटर ने अपना जो मुख्य अनुपालव अधिकारी इनकी भी नियुक्ति कर दी सी। तुहानूं सब नूं पता होएगा कि इंडिया दे विच ना नवे IT रूल्स आए हैं जिंदे विच भारत सरकार ने की बोलिया है कि जिहड़ी भी सोशल मीडिया कंपनी दे 50 लाख तो ज़्यादा यूजर्स होणगे उन्हां नूं 3 नियुक्तियां इंडिया दे विच करनियां ही पैणगियां। पहली किहड़ी है? मुख्य अनुपालन अधिकारी, दूसरी है नोडल अधिकारी और तीसरी है शिकायत अधिकारी, ठीक है। और ये सारे ही अधिकारियों लिए एक शर्त रखी गई है कि इंडिया दे ही निवासी होने चाहिए है। और जो ट्विटर है ना इनू बहुत बार बोलन ते भी भारत सरकार ने इनू बहुत बार
मतलब कि नोटिस भी दिते हैं तो इन्हों का उन्हों का टशन चलता ही रहा और ट्विटर फिर भी ग्रीवेंस अधिकारी नियुक्त ही नहीं कर रहा सी। ठीक है, तो फाइनली इन्होंने हुण इन्होंने अधिकारियों को नियुक्त कर लिया और ट्विटर ने अपने IT रूल्स जिहड़े हैगे उन्होंने मन भी लिया। ओके, तो हुण आपां देखते हैं ट्विटर के बारे दे विच तां इहदी जिहड़ी फॉर्मेशन हुई है 21 मार्च 2006 दे विच कीती गई। इहदा हैडकुआटर कित्थे मिलेगा? कैलीफोर्निया USA दे विच। ठीक है, इहदे फाउंडर हैगे है जैक डोरसे एंड ग्लास एंड बिस्टोन दैन E विलियम्स। ओके, अगर आप इहदे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन देखांगे तो ये हो जाएंगे ओमिड कॉडस्टैनी एंड जिहड़े CEO हैगे है ये हो जाएंगे जैक डोरसे। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन कोपा अमेरिका फाइनल्स 2021? किस टीम ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया? तो ये हो जाएगी अर्जेंटीना। ठीक है, ये जी कोपा अमेरिका है ना, ये फुटबॉल का एक मतलब तुसी कह सकते हो कि बहुत वड्डे लैवल का टूर्नामेंट हुंदा है जिसनों इस बारी अर्जेंटीना ने जित लिया है। इन्होंने किहड़ी टीम नूं हराया सी? तो ब्राज़ील नूं हरा के अर्जेंटीना ने ये वाला मुकाबला अपने नाम किया। इन्होंने 1-0 दे नाल ब्राज़ील नूं हराया सीगा। ठीक है, और इस दे विच याद रखना कि जिहड़ा एक गोल किया गया ना, ये किता किन्ना ने? एंजल डी मैरिया। ओके, इको एक गोल इन्हों ने किया और मैसी जिहड़े हैगे आ तुहानूं पता है अर्जेंटीना तो ही बिलोंग करते हैं, अर्जेंटीना की टीम तो ही खेलते हैं और मैसी ने अपना पहला सब तो वड्डा इंटरनैशनल टूर्नामेंट अर्जेंटीना टीम दे विच पहली बारी जितया है। ठीक है, और उदों नज़ारा देखने वाला सी जदों ये फाइनल विच जितया है तो मैसी नूं ना सारिਆਂ ने अपने मोढिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ उठा लिया लिटा के और पूरी तरह इन्हां नूं वाइप कर रहे सी पूरे ग्राउंड दे विच। बहुत अच्छा वाला माहौल सीगा। ये हो सके तो तुसीं यूट्यूब के उपर एक बार वीडियो जरूर देखना। ठीक है, हुण आपां गल करदे हां अर्जेंटीना दी, तां इहदी कैपिटल हो जाएगी बुइनोस एयरेस एंड इहदे प्रेसिडेंट हैगे एल्बर्टो फर्नांडिस, करेंसी हो जाएगी पीसो। ठीक है, अगर आप करंट ना रिलेट करते हैं तो अर्जेंटीना ने ना अपना एक अबॉर्शन लॉ लैके आया हुने हुने। इहदे विच इन्हां ने बोलिया कि जो 14 हफ्तिਆਂ की प्रैगनेंसी है इहदे विच अबॉर्शन नूं असीं लीगल मनदे हां। ठीक है, इस दे नाल अर्जेंटीना ने अपने कंट्री दे 12,000 सब तो अमीर लोगों के उपर टैक्स लगाया। किहड़े वाला? मिलीनियर टैक्स लगाया। ठीक है, ये किस लिए? क्योंकि इन्होंने बोलिया कि जो कोविड हैगी है इहदे नाल बहुत ज़्यादा नुकसान होया कंट्री दे विच और ऐसे ही नुकसान नूं पूरा करन दे लई कोविड नूं कॉम्बैट करन दे लई ना सारे ही जिहड़े रिचेस्ट परसन है इन्हां नूं मिलीनियर टैक्स जो है इहदा भुगतान करना पएगा। ओके, तो ये सीगे 13 जुलाई 2021 के सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप तुहानूं सैशन अच्छा लग्या होएगा। अगर अच्छा लग्या होए तो लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो फिर आपां मिलांगे कल दे करंट अफेयर्स के सैशन दे विच। एंड एक होर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि कल तुहानूं सैशन मिलेगा ओलंपिक्स का। ठीक है, ओलंपिक्स दे विच तुहानूं पता है 100% क्वेश्चन पुट किए जाएंगे तुहाडे एग्जाम्स दे विच, तो इसलिए उस सैशन नूं मिस ना करना। और आपां उहदे विच एक भी इदां दा फैक्ट नहीं होएगा जो ओलंपिक्स का उहदे विच तुहाडे कोलों रह जाए। हर एक फैक्ट तुहानूं क्लीयर किया जाएगा, पूरी डिटेल दे विच कल वीडियो आएगी, तो इहनूं जरूर देख लेना। तो करंट अफेयर्स नूं कभी भी मिस नहीं करना, डेली 7 बजे तुसीं इहनूं देखना ही है। ओके, तो फिर मिलांगे आपां कल दे सैशन दे विच। टिल दैन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।